अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश इजी ट्रिक्स में खुश आमदीद। ये यूनिट 13 है आफ्टर 20 ईयर्स। इसकी ट्रांसलेशन और समरी वाली वीडियो अपलोड हो गई थी। आज ज़रा हम इसकी वो देखते हैं एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन भी हम देखेंगे। उससे पहले इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं हम। तो ये मेरे ख्याल में अगर पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसको आप देख लीजिएगा, आप स्टॉप कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आप पास करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सीधा क्वेश्चंस पे चलता हूँ। तो उसके बाद देखें ये क्वेश्चंस हैं, इसको शुरू करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन फुलफिलिंग प्रॉमिसेस? यस, फुलफिलिंग प्रॉमिसेस is a cornerstone of trust and integrity in the personal relationship and society। ठीक है, तो वादे पूरे करना तो जाहिर सी बात है आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी की अलामत है, जो कि करने भी चाहिए। आगे देखें। Are you excited to read an unprecedented example? Yes, a story about promise that leads to an unexpected or dramatic outcome is very exciting। While reading question है, what was the policeman doing while the strolling on the thoroughfare? ठीक है। While strolling in the thoroughfare, the policeman was performing his duties. The text specifies that he was trying to doze as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. He was ensuring the security of the area by checking that the business doors were locked and was that the street was peaceful। ठीक है, जिस तरह हर इलाके में चौकीदार होता है उस तरह की सिचुएशन थी। वो देख रहा था अपनी काम करने के लिए कि इलाके में अमन और अमान हो। Why did the friend depart 20 years back? The friend departed 20 years back because they had different life paths and ambitions. Bob, who was 18 at the time, was ambitious and adventurous. He was to start for the West to make fortune. Jimmy, on the other hand, was 20 and content with his life in New York. You couldn't have dragged Jimmy out of New York as he believed was। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि उसको भी बाहर नहीं लाया जा सकता। दो दोस्त थे, रेस की तलाश में एक निकल गया। How much interest does the meeting of the two friends create? The meeting creates a very high level of interest and suspense। The premise of 20 years। अब ये मैंने premise लिख दिया लेकिन ये promise है। Appointment is immediately intriguing। The policeman's interest is shown when he says, it sounds pretty interesting, and says to hear the story for the reader. An interest is built on the mix of the nostalgia and growing tension, wondering if Jimmy will show up and what their reunion will be like, which makes the final shocking revelation all the more impactful। ठीक है, तो ये जब आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है किस तरह से हैरानिकल सिचुएशन है। उसके बाद पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर प्रिपेयर फॉर द एंड ऑफ द स्टोरी? द राइटर प्रिपेयर्स फॉर द एंड ऑफ द सटल क्लूज। ठीक है, डार्क स्ट्रीट की वो बात करता है, बॉब्स बोस्ट की बात करता है, जिमीज डिस्क्रिप्शन है उसमें। आप इसको बॉब्स कार एंड ज्वेलरी जिस तरह से उसने बताई हुई है, ये आप वीडियो को पास करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। The story begins on the cold, windy, and nearly deserted city street about the 10 p.m. A policeman on his beat checking the doors of the closed business atmosphere. The atmosphere is quiet and gloomy with a few people about। चंद एक लोग हैं, बहुत ज्यादा सर्दी है, माहौल जो है वो बड़ा अफसुर्दा सा है। Was the place a business center only? No, the place was not exclusively a business center. While the majority of the doors belong to the closed business places, the text also mentions the lights of the cigar store are all-night lunch counter, indicating a mix of commercial establishment, some of which were still open।
ठीक है, तो ये शहर वाली रूटीन है, कुछ दुकानें बंद थी और कुछ थी. Explain the reason of the street emptiness at that time. The street was empty because it was a chilly rainy night and vicinity was one that kept early hours, meaning most businesses had closed and people had returned to their homes. और लोग क्या थे, घरों को वापस आ चुके. What kind of characters does the story after 20 years have? The story features complex, morally nuanced characters. They are not simply good or evil, but are defined by their conflicting loyalties between friendship and duty, and between a life of crime and a life of honest plodding work. ठीक है, वो उसे कहता है कि मैं तेज था, वो कहता है नहीं वो था सुस्त लेकिन उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा. और वो वहां के जाके अल्लाह जाने कौन से क्राइम पैटर्न्स पे काम करता है, वो एक क्रिमिनल बन जाता है और फिर वो जाहिर सी बात है क्राइम क्राइम ही होता है. Analyze the most significant happening in the story. The most significant happening is a climax where Silky Bob realizes the man he is talking to is not his friend Jimmy, but a police officer. This moment shatters the nostalgic reunion and reveals that the real Jimmy Wells, now a patrolman, has identified and arrested his old friend. अब वो एक ऑफिसर बन चुका होता है जो गश्त पे होता है और उसको पता चलता है तो वो वही उसको गिरफ्तार करवा लेता है. Describe the climax of the story after 20 years. The climax occurs under the bright lights of the drugstore when Bob sees a tall man's face clearly and realizes he is not Jimmy Wells. The plainclothes officer then reveals Bob's identity, informs him he is under arrest and hands him a note from the real Jimmy Wells. ठीक है, वो उसे बताता है कि तुम गिरफ्तार किए जा चुके हो और फिर वो उसको बताता है कि ये देखो ये नोट भी मैं लेके आया हूँ. Give an account of Jimmy and Bob's personalities in the in the story, sorry. Jimmy Wells, he is described as plodder, a steady, reliable, and loyal man who believes New York is the only place on earth. An adult, he is dedicated police officer, bound by duty but still possessing a strong sense of friendship as shown by his inability to arrest the Bob himself. उसे ये लगता है कि जो उसका शहर है वो दुनिया की सबसे अच्छी जगह है लेकिन वो दोस्ती भी पाल रहा है, दोस्त को खुद गिरफ्तार नहीं कर रहा. Bob, Silky Bob, he is ambitious, adventurous, and egotistical. Having gone west to seek his fortune, he is successful, but through criminal means. Sharpest wits. ठीक है, despite his life of crime, he is fiercely loyal to his old friends, having traveled 1,000 miles to keep appointment. ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी दोस्ती निभाने आया है और वो भी दोस्ती निभाता है, उसको गिरफ्तार नहीं करता है. The ending of After 20 Years fills the reader with poignancy. Discuss. The ending is poignant because it contrasts with the warmth of nostalgia. नोस्टैल्जिया किसको कहते हैं? नोस्टैल्जिया होता है कि माजी की यादों पे बैठ जाना, उसके बारे में या याद करते रहना. ठीक है, आप कह सकते हैं ही इज नोस्टैल्जिक. और ये जो लफ्ज है ये जी जो है इसमें प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, इसको पॉइनियंट पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसको पॉइगनेंट नहीं पढ़ते, इसे पॉइनियंट पढ़ते हैं. तो contrast with the warmth of nostalgia with the cold reality of the present, Bob's faithful journey and hopeful wait and not in a joyful reunion but in the betrayal and arrest by his dearest friend. Jimmy's internal conflict between duty and friendship adds a layer of the tragic irony, making the resolution deeply sad and emotionally complex. वो भी दोस्ती निभाने आता है 20 साल बाद और उसका भी इंटरनल देखें, वो चाहे एक अफीसर है उसे गिरफ्तार कर भी सकता है लेकिन वो भी एक दोस्त होने के नाते उसको खुद गिरफ्तार नहीं करने आ सकता. इससे पता चलता है कि दिली तौर पर उसको कितना दोस्ती का ख्याल है. In the second line, the word spectator is used. In what context and author has used word in the story? The author uses the word spectator to emphasize the deserted nature of the street. ठीक है, the policeman's impressive manner is habitual and not for the public display because there were a very few around to see it. क्योंकि लोग वहां पे नहीं थे, इसी वजह से उसने कहा है, लोगों को उसने तमाशाई कहा है.
इवेलुएट द स्टेजेस ऑफ द प्लॉट डेवलपमेंट इन द स्टोरी हेडिंग वाइज। एक्सपोजिशन क्या है? पुलिसमैन पेट्रोल्स क्वाइट रेनी स्ट्रीट, नाइट थी कि वो गश्त पे है, रात कैसी है और मौसम कैसा है। राइजिंग एक्शन क्या है? द पुलिसमैन मीट्स अ मैन वेटिंग इन द डोरवे, उससे वो मिलता है। क्लाइमेक्स क्या है? अंडर द ब्राइट लाइट ऑफ द ड्रग स्टोर, कि जब वो लाइट में उसको देखता है कि ये बंदा वो तो नहीं है जिससे मैं मिलने आया था। फॉलोइंग एक्शन क्या है? द पेन क्लॉथेस ऑफिसर हैंड बॉब द नोट फ्रॉम द पेट्रोल मैन वेल्स, वो उसे वो थमाता है पर्ची। रेजोल्यूशन क्या है? कि बी बॉब रीड्स द नोट डिस्कवरिंग दैट his old friend Jimmy had recognized him as a wanted criminal but couldn't arrest him personally। ये वो खुद उसे अरेस्ट करने नहीं आया। उसके बाद देखें, एग्जामिन हाउ कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इन द स्टोरी डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ द टेक्स्ट, इंटरेक्ट विद अदर्स कैरेक्टर एंड एडवांस द प्लॉट और डेवलप द थीम। ठीक है, कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। Two complex characters are Jimmy and Bob. Jimmy's internal conflict between duty and friendship is the story's central tension. His decision to have another officer make the arrest advances the plot to its shocking climax and develop the same that time and choices can create the unbridgeable divide between the people। ठीक है, एक दोस्त भी है फिर भी गिरफ्तार करवाना है उसने। Even old friends, Bob's character is revealed through his dialogue with the policeman. His pride in his success contrasts with the audience growing suspicious about its source. His interaction with the plainclothes officer, whom he mistakes for Jimmy, directly leads to the plot's resolution and underscores the theme of changed identities। और फिर क्या है? आइडेंटिटी उसकी चेंज हो गई है। बस दोनों दोस्त हैं। स्टोरी अगर आपको समझ आ गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी क्वेश्चन में आपको इशू आएगा। Cite strong and thorough textual evidence to support the analysis what the story tells explicitly as well as interference drawn from the text। Explicit क्या है? Bob's criminal status is stated by the plainclothes officer, you have been under arrest for the 20 minutes। Silky Bob, Chicago thinks you may have dropped over our way, कि तुम इधर आ गए। तो उसके बाद देखें इसका इन्फ्रेंस देखें, जिमी रिकॉग्नाइजेज द बॉब। ठीक है, Jimmy recognizes the Bob as the wanted man. The text states explicitly in the note, "When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago." From this, we can infer that Jimmy was policeman Bob spoke to earlier, as he was one who saw the Bob's face illuminated by the match। मतलब जो पहला बंदा उससे मिलने आया था, हम कह सकते हैं कि वो उसका असल में दोस्त जिमी वेल्स ही था। जब उसने माचिस जलाई सिगरेट सुलगाने के लिए, तो उस वक्त उसने पहचाना कि ये तो मेरा दोस्त है, अखलाकन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इसको गिरफ्तार करूं। ये आपकी स्टोरी हो गई। तो ये आपके एमसीक्यूज के ऑप्शन हैं जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चार्ट बनाना है, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, ओरल कम्युनिकेशन है। उसके बाद इन्फ्रेंस के दो क्वेश्चन हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेम थ्री स्किल्स दैट पुलिसमैन मस्ट हैव। कौन कौन सी अलर्टनेस एंड ऑब्जर्वेशन उसकी होनी चाहिए। अलर्टनेस ऑब्जर्वेशन से मुझे याद आया, एक दफा मैं जा रहा था कोरोना के दिनों में, सवात की एक चेक पोस्ट है, लंडाके चेक पोस्ट। तो उस पे मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका ना, तो मुझे मेरा उसने नाम पूछा, मैं बाइक पे था, और ना उसने मेरा आईडी कार्ड मांगा। उसने 30 to 40 सेकंड मेरे दिल पे हाथ रखा, मुझे कहा जाओ। अब देखें, मैंने अगर कोई भी 2 नंबर काम किया होता ना, आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो तेज हो गई होती। तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छी चीज है, गुड कम्युनिकेशन स्किल। जाहिर सी बात है कुछ बात पुलिस वाले इतने बदतमीजी से बात करते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं। ऑनेस्टी एंड स्ट्रांग सेंस ऑफ ड्यूटी, और फिर उस बंदे में स्ट्रांग सेंस ऑफ ड्यूटी भी होना चाहिए, ड्यूटी को ड्यूटी समझे। Isn't it a great satisfaction to perform your duty with honesty? Yes, it is a great satisfaction to perform one's duty with honesty. Patrolman Jimmy Wells felt true contentment by fulfilling his duty sincerely, even though it meant arresting his old friend through another officer। ठीक है, तो उसने अपनी ईमानदारी से निभाई ड्यूटी। उसके बाद देखें, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं आपकी, ट्रांजिशन चेंज को कहते हैं। ठीक है, तो और वो जो चेंज होता है
देखें बिगिनिंग में आप ये सारे डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो आपके पास लिखी है अकॉर्डिंगली हेयर, ये वो, ये सारी। मिडिल के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। एंड के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसे के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट के लिए कि जहाँ पे दो चीज़ें अपोजिट हों, ये वाली लिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर परसुएट कर किसी को कन्विंस जैसे आप करते हैं, ठीक है, तो ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किसी चीज़ की अगर एग्जांपल वगैरह देनी हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इलस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद देखें काज एंड इफेक्ट के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपैरिजन, अगर दो टॉपिक हैं आपके पास, आप ये यूज कर सकते हैं। एडिशन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो सेम यही चीज है। उसके बाद देखें कंजंक्शन आए हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो ये फैन बॉयज होते हैं और ये इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज्यादा। अब यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इसने अवॉइड बस लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 11th की क्लास में आपको किसी को याद हो तो उधर लिखा हुआ था ऑन अ वाइट बस, ठीक है। तो अब देखें ट्रांजिशनल डिवाइसेस गो बियॉन्ड द बेसिक कंजंक्शन, ठीक है, ऑफरिंग अ ब्रॉडर टूल किट टू शो द फ्लो ऑफ द आइडियाज, ठीक है। उनका मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं है, वो आइडिया को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाते हैं कि पढ़ने में जो होती है कोहिजन फील होती है। अब सीक्वेंस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप? फर्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। ये काज एंड इफेक्ट के लिए आप कौन से इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं। हाउ एवर कन्वर्सली ऑन द अदर हैंड, ये आप कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलैरिटी के लिए आप क्या कहते हैं? द सेम वे, सिमिलरली, लाइक वाइज। या किसी चीज पे जोर देना हो तो आप क्या कहते हैं? इनफैक्ट, इंडीड, मोर ओवर। अब एग्जाम्पल आगे लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी उसी चीज की एग्जांपल्स दी हुई हैं। यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू कनेक्ट द इंडिपेंडेंट क्लासेस टू द डिपेंडेंट क्लासेस। ये आपको पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ही यही होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है वो क्या होता है? हमेशा वो डिपेंडेंट क्लास होता है। तो ये काज एंड इफेक्ट के लिए ये चीज इस्तेमाल करते हैं आप, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। टाइम के लिए आप व्हेन, वेयर, बिफोर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कंडीशन की बात करें तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ, अनलेस, इवन। या फिर आप कंट्रास्ट के लिए वेयर एज, वाइल, ये इस्तेमाल करते हैं। किसी पर्पस को बताना हो, सो दैट। कंपैरिजन अगर हो रहा हो तो ये आप इस्तेमाल करते हैं। कंसेशन के लिए क्या करते हैं? अब कंसेशन कैसे आपको समझ आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही केम टू स्कूल ऑल्दो ही वाज सिक। अभी उसको कंसेशन दी जा रही है कि वो आया है तो उस पर थोड़ा सा रहम किया जाए, चाहे उसकी तबीयत खराब थी फिर भी स्कूल आया है। तो ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें कंजंक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद देखें क्लासेस एंड कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट क्लास होता है आपका और डिपेंडेंट क्लास होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है कैन स्टैंड अलोन है, जो डिपेंडेंट होता है कैन नॉट स्टैंड अलोन है। उसके बाद थिंक ऑफ दीज एज एन एडल्ट। और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है तो वो कहता है कि इसे एक बड़े आदमी की तरह समझें, और डिपेंडेंट क्लास को एज अ बेबी लें, एक बच्चे की तरह। बच्चे को हमेशा सहारे की जरूरत होती है, बड़े को सहारे की जरूरत नहीं होती। We are going to label our independent classes with the capital I and the dependent classes with the capital D। अब ठीक है, तो ये एक उसने बता दिया है कि इस तरह से हो सकता है। अब फैन बॉयज के लिए ये इसने इस्तेमाल की है टर्म, ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है। और इसी तरह आन, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया है शायद कि ये फर्स्ट ईयर की क्लास में आन अ वाइट बस था ये, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ वाइट बस कर दिया गया है। तो ये भी उसको याद रखने का एक निमोनिक बना दिया गया है। तो टाइम के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, रीजन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, कंडीशन के लिए सेम वही चीज़ है। इसको मैं जितना भी एक्सप्लेन करूं मेरा नहीं ख्याल के बस वीडियो ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें कॉलम को आपने क्या करना है, जिसके साथ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, उसको पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। द बेकर डेकोरेटेड द केक आफ्टर आई फिनिश्ड ईटिंग डिनर। वी वेंट टू द पार्क एज लॉन्ग एज इट वाज रेनिंग। आई फिनिश्ड माई होमवर्क सो शी कुड ऐड फिनिशिंग टचेस। तो ये आपने यहाँ पे जो आपके लिखे हुए हैं
ये यहाँ से उठा के आपने ऊपर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे फिट लग रहा था तो मैंने लिख दिए। उसके बाद यूज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे बोथ और एंड आते हैं, आइदर और आर होते हैं, नीदर और नार होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी ईदर नार लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी ये नीदर नार होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी नॉट बट है, नॉट ओनली बट आल्सो है, तो ये सारे इसी तरह यूज होते हैं। अब इसको क्या कहा गया है, उसने कहा है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल, आइदर यू विल वेट हियर और आई विल गो अलोन। नॉट ओनली डिड ही फिनिश हिज होमवर्क बट आल्सो ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। मूवी वाज बोथ एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल। उसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन बताए गए हैं किस तरह से वो पेयर्स में काम करते हैं। बोथ एंड और इनके सेंटेंस आपके बताए गए हैं। इधर आर होता है, नीदर नार होता है, नो सूनर देन होता है, हार्डली के साथ व्हेन होता है। तो ये लिस्ट इसी तरह से इस्तेमाल होती है। इन्हीं को फिर एग्जाम्पल्स में यूज किया गया है। ये एग्जाम्पल्स भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें मुश्किल कोई भी चीज नहीं है। सेंसरी डिटेल किसको कहते हैं, जो सेंसस से रिलेटेड हो, तो ये भी उन्हीं चीजों से रिलेटेड है कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन, कि किस तरह से कंपोज, मतलब किस तरह से कोई चीज लिखते हैं आप। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, टू राइट समथिंग एज इट इज। आपने अपने जज्बात वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना, जिस तरह से कोई चीज है उसको उसी तरह से लिख देना। तो ये यहाँ पे आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर होती है। होपफुली ये वीडियो किसी न किसी की किसी हद तक हेल्प ज़रूर करेगी। थैंक यू सो मच।